नमस्कार, बिग ब्रेकिंग में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। जी हां, बात करते हैं कोरोना की, जिस पर हमले की तैयारी हो चुकी है। जी हां, नया साल नई उम्मीद लेकर आया है। 1 जनवरी को जहां कोविशील्ड वैक्सीन को मंजूरी मिली, तो 2 जनवरी को वैक्सीन का सफल ट्रायल रन किया गया, जबकि आज वैक्सीन पर बड़ा ऐलान होगा। आज का दिन बेहद खास है। आपको बता दें कि आज वैक्सीन पर बड़ा ऐलान होगा। थोड़ी देर में इसका ऐलान किया जाएगा। आपको बता दें कि 1 जनवरी को कोविशील्ड वैक्सीन को मंजूरी मिली थी। 2 जनवरी को वैक्सीन का सफल ड्राई रन किया गया और आज बड़ा ऐलान हो सकता है वैक्सीन पर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर उठे सवालों के बीच 3 वीडियो जारी किए हैं। इन वीडियो में एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया कोरोना वायरस टीके से जुड़े सवालों का जवाब दे रहे हैं। पहले सवाल में जब पूछा गया कि क्या कोई व्यक्ति बिना रजिस्ट्रेशन कराए कोविड वैक्सीन ले सकता है, इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि नहीं, बिना पूर्व रजिस्ट्रेशन के किसी को भी वैक्सीन नहीं दी जाएगी। जिसके जवाब में गुलेरिया ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर लोग रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। Namaste, I am Dr. Guleria and we have the vaccine which is going to be available with us soon, and hopefully with that the pandemic will come to an end. At this point in time, I'd like to share some very important factual information with you. I know that many of you have some questions as far as the vaccine is concerned, and let's try and address some of them. Yes, vaccine trials are under different stages of finalization. Many of the vaccines are in the phase 3 trial and they're almost complete. So once regulatory clearances are given by the regulatory authorities, the Government of India is all geared up to launch these vaccines for COVID-19. For more information and updates, do visit the Government of India website www.mohfw.gov.in. This will depend on the availability of vaccine, and the Government of India has selected priority groups who will be vaccinated based on risk factors. The first group will include healthcare workers and frontline workers. The second group that will receive the COVID-19 vaccine will be persons over the age of 50 years and persons under 50 years with comorbid conditions. Well, vaccine for COVID-19 is voluntary. However, if you ask me, I think it is advisable to take the complete vaccine schedule as far as COVID-19 is concerned, because we want to protect ourselves and also protect our near and dear ones, our close contacts, our family members and our co-workers. The vaccine will be introduced in the country only after regulatory bodies clear it based on its safety and efficacy. I think safe. और अब आइए आपको बताते हैं कोविशील्ड के क्या क्या इसकी खासियतें हैं, विशेषताएं क्या हैं। कोविशील्ड के क्लिनिकल ट्रायल के एनालिसिस से बहुत अच्छे नतीजे सामने आए हैं। वॉलंटियर्स को पहले हाफ डोज दिया और फिर फुल डोज। किसी को भी हेल्थ से जुड़ी कोई गंभीर समस्या देखने को नहीं मिली है। जब हाफ डोज दिया गया तो इफिशिएंसी 90% मिली और 1 महीने बाद उसे पूरा फुल डोज दिया गया। जब दोनों डोज फुल डोज दिए गए। Good morning. The Subject Expert Committee of Central Drug Standard Control Organization met on 1st and 2nd January 2021 and made recommendations in respect of proposal for restricted emergency approval of COVID-19 virus vaccine of Serum Institute of India and Messrs. Bharat Biotech, as well as phase 3 clinical trial of Messrs. Cadila Healthcare Limited. The subject expert committee consists of domain knowledge experts from the field of
pulmonology, immunology, microbiology, pharmacology, pediatrics, internal medicine, etc. Messrs. Serum Institute of India, Pune has presented a recombinant chimpanzee adenovirus vector Covishield encoding the SARS-CoV-2 spike S glycoprotein with technology transfer from AstraZeneca, Oxford University. The firm submitted safety, immunogenicity and efficacy data generated on 23,745 participants aged more than or equal to 18 years or older from overseas clinical studies. The overall vaccine efficacy was found to be 70.42%. Further, Messrs. Serum was granted permission to conduct phase 2/phase 3 clinical trial on 1600 participants within the country. The firm also submitted the interim safety and immunogenicity data generated from this trial, and the data was found comparable with the data from overseas clinical studies. After detailed deliberations, subject expert committee has recommended for the grant of permission for restricted use in emergency situation subject to certain regulatory conditions. The clinical trial ongoing within the country by the firm will continue. Messrs. Bharat Biotech has developed a whole virion inactivated coronavirus vaccine named Covaxin in collaboration with ICMR and National Institute of Virology, Pune, from where they received the virus seed strains. This vaccine is developed on Virocell platform, which has well-established track record of safety and efficacy in the country and globally. The firm has generated safety and immunogenicity data in various animal species such as mice, rats, rabbits, Syrian hamster, and also conducted challenge studies on non-human primates, rhesus macaques, and hamsters. All this data has been shared by the firm with CDSCO. Phase 1 and Phase 2 clinical trials were conducted in approximately 800 subjects, and results have demonstrated that the vaccine is safe and provides a robust immune response. The Phase 3 efficacy trial was initiated in India in 25,800 volunteers, and till date approximately 22,500 participants have been vaccinated across the country, and the vaccine has been found to be safe as per the data available till date. The subject expert committee has reviewed the data on safety and immunogenicity of the vaccine and recommended for grant of permission for restricted use in emergency situation in public interest as an abundant precaution in clinical trial mode to have more options for vaccinations, especially in case of infection by mutant strain. The clinical trial ongoing within the country by the firm will continue. The Cadila Healthcare Limited has developed a novel coronavirus 2019 nCoV vaccine using DNA platform. The firm initiated Phase 1/Phase 2 clinical trial in India in more than 1,000 participants, which is ongoing. The interim data suggests that the vaccine is safe and immunogenic with 3 doses when administered intradermally. Accordingly, firm has sought permission to conduct further Phase 3 clinical trial in 26,000 Indian participants, which has been recommended by subject expert committee. Messrs. Serum and Messrs. Bharat Biotech vaccines have to be administered in 2 doses. All
the 3 vaccines have to be stored at 2 to 8 degrees centigrade. After adequate examination, the CDSCO has decided to accept the recommendations of the expert committee, and accordingly vaccines of Messrs Serum and Bharat Biotech are being approved for restricted use in emergency situation, and permission is being granted to Messrs Cadila Healthcare for conduct of phase 3 clinical trial in India. Thank you. Thank you very much, sir. Friends, please just listen. This statement is being circulated to you. It is also getting uploaded on the PIB website. So please use it. Thank you very much. Statement is over. तो DGCI की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे। इस दौरान उन्होंने कोविशील्ड और कोवैक्सीन को मंजूरी मिल गई। एक्सपर्ट कमेटी ने इसकी जानकारी दे दी है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि तो DCGI की प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी हुई है और इस दौरान बड़ा ऐलान किया है। एक्सपर्ट कमेटी ने इसकी जानकारी दी है। आपको बता दें कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कोविशील्ड और कोवैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। DCGI की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि पूरे देश की इस पर नजर थी और पूरे देश को इस चीज का इंतजार था और DCGI ने ऐलान कर दिया है। एक्सपर्ट की कमेटी ने इसको मंजूरी दे दी है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन को मंजूरी दे दी है। और कांग्रेस के महाधरने की बात करते हैं और आपको बता दें कि किसानों को लेकर कांग्रेस के हल्ला बोल की बात करते हैं। केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ और राज्यपाल द्वारा राज्य के 3 कृषि बिल्स रोकने के मुद्दे पर कांग्रेस ने केंद्र के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। आज जयपुर के शहीद स्मारक पर कांग्रेस का धरना प्रदर्शन होगा और जो 3 बजे तक चलेगा। इस धरने में सीएम गहलोत, PCC चीफ डोटासरा, सचिन पायलट समेत कई मंत्री और विधायक रहेंगे। सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी ने सभी कांग्रेस और समर्थित विधायकों को मैसेज भेजकर धरने पर आमंत्रित किया है। तो कांग्रेस का कृषि कानून के खिलाफ आज धरना प्रदर्शन है। 3 बजे तक ये धरना प्रदर्शन चलेगा, जिसमें सीएम अशोक गहलोत, PCC चीफ डोटासरा और सचिन पायलट समेत कई मंत्री और विधायक इसमें शामिल होंगे। कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर हमला बोल रही है। 4 घंटे तक कांग्रेस धरना प्रदर्शन करेगी और राज्यपाल द्वारा राज्य कृषि बिल रोकने का भी विरोध करेगी। तो लगातार कृषि कानून का विरोध हो रहा है पूरे देश में। किसान सड़कों पर उतर आए हैं और अब इस पर राजनीति भी बहुत तेज हो गई है। कांग्रेस लगातार हमलावर है इस कानून को लेकर केंद्र सरकार पर और एक बार फिर से जो है कांग्रेस धरना प्रदर्शन करने जा रही है। 4 घंटे तक ये धरना प्रदर्शन चलेगा, जिसमें सीएम अशोक गहलोत भी शामिल होंगे। और ज्यादा जानकारी के धरना स्थल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं गोवर्धन चौधरी। गोवर्धन, किस तरह की तस्वीर वहां पर देखने को मिल रही है? कौन कौन लोग धरना प्रदर्शन में अभी तक पहुंच चुके हैं? देखिए, विधायकों का और पूरा जो कांग्रेस विधायक दल है, एक तरह से वो आज यहाँ शहीद स्मारक पर कुछ ही देर में धरने पर बैठने वाला है। धरना स्थल पर कांग्रेस के नेताओं का और विधायकों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। मंत्री टीकाराम जूली और निर्दलीय महादेव सिंह खंडेला, कांग्रेस विधायक विनोद कुमार लीलावाली, सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी, ये धरना स्थल पर पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ धरना स्थल पर नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। कांग्रेस का आज ये मेगा प्रदर्शन है, बड़ा धरना है। पूरा जो एक तरह से कांग्रेस का विधायक दल है वो धरने पर बैठने जा रहा है कृषि कानूनों के खिलाफ। हमारे साथ सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी जुड़ चुके हैं। महेश जी, बहुत कम ऐसा होता है कि पूरा विधायक दल या तो राजभवन में धरने पर बैठा था या फिर आज यहाँ शहीद स्मारक पर धरने पर बैठ रहा है।
दोनों बार हमारी मजबूरी रही। आज भी हमारी मजबूरी, हम तो चाहते थे केंद्र सरकार जो उन्होंने कृषि विरोधी कानून पास कराए हैं उन कानूनों को वापस ले ले। काफी लंबे समय तक सब्र भी किया कि किसानों को उनका हक मिल जाए, न्याय मिल जाए, लेकिन केंद्र सरकार के और प्रधानमंत्री जी के कानों पर जूं नहीं रेंग रही। स्थिति यह है कि किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। कल भी एक किसान ने आत्महत्या की, लेकिन दुख की बात है कि ऐसी संवेदनशील सरकार है जो कृषि का कॉर्पोरेटाइजेशन तो करने की कोशिश कर रही है, लेकिन किसानों को राहत देने की बात नहीं कर रही है। बड़े पूंजीपतियों के हाथों में किसानों को एक तरीके से ये कहें बेचा जाने की कोशिश की जा रही है। तो वो भी मजबूरी थी। और जब पिछली बार हम लोग राजभवन गए थे तब हमारी मजबूरी ये थी कि हम चाहते थे कि 3 कृषि बिल्स हैं वो भी आपके राजस्थान के, वो राजभवन में अटके हुए पड़े। मैं कह रहा हूं तब भी पहले भी एक मजबूरी थी राजभवन की, और आज भी मजबूरी है कि तीन कृषि बिल लंबे समय से राजभवन में अटके पड़े हैं, उनको राष्ट्रपति को नहीं भेजा जा रहा है। तो कुल मिला के आज ये मजबूरियां किसान के सामने मजबूरी, मजदूर के सामने मजबूरी, सारे पूरे तमाम जनता के सामने मजबूरी। मोदी जी ये सोचे बैठे हैं, उनके मन में ये बात आ गई है। एक शेर मैंने पहले भी कहा था कि कमीज ने सही पैरों से पेट ढक लेंगे, कितने मुनासिब हैं ये लोग इस सफर के लिए। इस तर्ज पर मोदी जी काम कर रहे हैं। हमारी मजबूरी है, और लेकिन हम किसानों के समर्थन में पूरी कांग्रेस खड़ी है और किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देगी। उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। महेंद्र जी, पूरा विधायक दल को आपने न्योता भेजा है यहाँ पर धरने पर बैठने के लिए। आगामी रणनीति क्या रहेगी कांग्रेस की? इस तरह बीजेपी ये सवाल उठा रही है कि सत्ताधारी पार्टी धरने दे रही है। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व के अंदर आज सारा कांग्रेस का विधायक दल, कांग्रेस के समर्थित विधायक सब लोग यहाँ पर धरने पे बैठेंगे। और उसके बाद में भी अगर दिल्ली की सरकार पे जूं नहीं रेंगती है तो 5 तारीख से लेकर 11 तारीख तक सभी मंत्री विधायक सब अपने अपने क्षेत्रों के अंदर दौरे पर रहेंगे और किसानों को अवगत कराएंगे किस प्रकार की जो इसका आंदोलन का रूप दिया जा रहा है। जिस प्रकार से भी आंदोलन दिया जाएगा, जब तक ये बिल वापस नहीं ले जाएंगे तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। हालांकि 2014 के अंदर भी भूमि अधिग्रहण बिल लेके आए थे, उस वक्त भी सरकार को झुकना पड़ा था और इस सरकार को झुकना पड़ेगा। तीनों के तीनों बिल इनको वापस लेने पड़ेंगे। तो मंत्री विधायकों का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारे साथ श्रम मंत्री टीकाराम जूली मौजूद है। मंत्री जी, बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है, या तो हम दिल्ली में तस्वीरें देखते हैं या फिर राजस्थान में अब देख रहे हैं कि सरकार धरने पर बैठ रही है। देखिए, बात सरकार की या आम आदमी की नहीं है, बात किसान की है, जो इस देश का अन्नदाता है, जिसने सदा इस देश का पेट भरा है। आज उसके सामने मुसीबत आई है तो हम उसके साथ क्यों नहीं खड़े हों? हमें साथ खड़ा होना चाहिए। पूरा देश खड़ा है तो सरकार को किसानों की सुध लेनी चाहिए। लगातार मैं समझता हूं कि 40 दिन के आसपास होने को आ गए, लेकिन केंद्र सरकार कतई भी इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। उनको किसान की पीड़ा को समझना चाहिए और जो अपने उद्योगपति मित्र हैं उनका और कहीं फायदा कर देंगे। पहले भी फायदा खूब करते आए, उनका कर्जा भी इन्होंने माफ किया, तो और कहीं कर देना। किसानों को मार के उनका फायदा क्यों करना चाहते हैं? ये जो अभियान शुरू हो रहा है कांग्रेस का, पॉलिटिकली ये देखा जा रहा है पंचायत चुनाव में उसका फायदा नहीं मिला कृषि कानूनों का, तो क्या उसको देखते हुए अब कांग्रेस इस पूरे मसले को गरमाना चाह रही है? देखिए, ऐसी बात नहीं है। हम पहले दिन से इसके साथ हैं, किसान के साथ हैं, लेकिन कांग्रेस, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस चीज को ये भी कर सकती थी, ये कांग्रेस ये प्रदर्शन कर रही है, किसान नहीं कर रहा है, तो आज ये चीज क्लियर हो चुकी है कि प्रदर्शन किसान कर रहा है, कांग्रेस किसान के साथ खड़ी है। तो ये मैसेज देने के लिए हम सब लोग अब मैदान के अंदर आए हैं और निश्चित तौर पर आने वाले समय में किसानों के कंधे से कंधा मिलाकर उनकी लड़ाई हम लड़ेंगे। लेकिन गोल्डन उनसे पूछे कि केंद्र तो आप पे गुमराह करने का आरोप लगा रही है यहाँ पर। बिल्कुल, देखिए, इस पूरे मसले को लेकर के अब कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग है वो जरूर तेज हो गई है, लेकिन बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि सत्ताधारी पार्टी है वो अपने ही राज्य में केंद्र के खिलाफ धरने पर बैठे। लेकिन जो किसान कानूनों का मामला है उसको लेकर के कांग्रेस
लगातार हमलावर है। मैं एक बार धरना स्थल की तस्वीरें और दिखाना चाहूंगा। विनोद कुमार लीलावाली हैं, वरिष्ठ विधायक हैं और पूर्व मंत्री रह चुके हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। विनोद जी, आप भी धरने पर यहाँ पर बैठ रहे हैं, आप उस इलाके से आते हैं जहाँ कृषि का बहुत बड़ा इन कानूनों का असर भी है और विरोध भी है। भारी विरोध है किसानों के अंदर, और ये जो 3 काले कानून इन्होंने लागू किए हैं इनको वापस लेना चाहिए। और मैं मोदी जी को यह राय भी देता हूँ कि इसमें कोई नीचापन नहीं है। पब्लिक नहीं चाहती, हम जनप्रतिनिधि हैं, जनता जो चाहती है वो हमें करना चाहिए। अगर कानून पास कर दिए तो इनको जब लोग कह रहे हैं वापस लो तो वापस ले लेना चाहिए। आज अन्नदाता दिल्ली के अंदर बरसात हो रही है, आज इस सर्दी के अंदर पड़े हैं, आज 40 दिन के लगभग हो गए हैं। तो मैं तो यही समझता हूँ कि ये काले कानून वापस लेने चाहिए। जो चल रहा है वो बहुत बढ़िया है और ये करना चाहिए हमें। विनोद जी, बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस है वो ये जो पूरे तीनों कानून है उनको लेकर के किसानों को गुमराह कर रही है, वरना क्या कारण है कि कुछ ही स्टेट के किसान आ रहे हैं। ये बीजेपी का तर्क है। ये देखो साहब, जो पार्टी है वो अपने अलग अलग तर्क देती है, लेकिन किसानों का इस तरह का माहौल, इस तरह का एजिटेशन और शांतिपूर्ण मैंने तो आज तक नहीं देखा साहब। मेरी 72 साल की उम्र हो गई है, इस तरह का लोगों का जुमावड़ा और लोगों का जुड़ाव जो है वो कभी नहीं हुआ। तो लोगों में असंतोष है किसानों के अंदर, तभी लोग आ रहे हैं। सब बुलाने से कौन आता है? कोई नहीं आता। और क्यों करेंगे हम तो ये चाहते हैं भी हम किसानों की जो अन्नदाता है उसकी हम मदद के साथ हैं हमारी कांग्रेस पार्टी में। जी बिल्कुल गोवर्धन, एक तो कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को आने वाले दिनों में भी गरमाएगी। कल के बाद में 7 दिन का एक अभियान है, वो भी कांग्रेस यहाँ कृषि कानूनों को लेकर के और केंद्र सरकार के खिलाफ शुरू करने वाली है। तो आने वाले दिनों में हमें अब जिस तरह के नजारे यहाँ शहीद स्मारक पर देखने को मिल रहे हैं, इस तरह के नजारे जिला और ब्लॉक मुख्यालयों पर भी देखने को मिलेंगे। मंच पर आप देख सकते हैं मंत्री और विधायक हैं, वो धीरे धीरे जुटना शुरू हो चुके हैं। 12 बजे का निर्धारित समय है जब ये धरना शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल गोवर्धन, एक सवाल ये भी है कि कल एक बार फिर से वार्ता शुरू होगी और उससे पहले 2 मुद्दों पर जो है रजामंदी हो चुकी है, तो क्या लगता है कि इंतजार कर लेना चाहिए, उसके बाद फिर धरना प्रदर्शन कुछ करते? देखिए, सवाल कई हैं, बीजेपी के अपने तर्क हैं तो कांग्रेस के अपने तर्क हैं, लेकिन कांग्रेस ने ऑल इंडिया स्तर पर यह अभियान छेड़ रखा है। इसी के तहत राजस्थान में भी वो लगातार अभियान छेड़े हुए हैं। आज धरना है, इसके बाद 7 दिन तक सारे विधायकों को फील्ड में जाकर के और किसान बचाओ देश बचाओ अभियान के तहत घर घर जाकर के किसानों के बीच जागरूकता फैलाने का इस कानूनों को लेकर के ये टास्क दिया गया है। कांग्रेस के पास में 2 विरोध के बड़े मुद्दे हैं। एक तो केंद्रीय कृषि कानूनों का विरोध है, दूसरा राज्यपाल की ओर से राजस्थान के जो 3 कृषि कानून हैं जो केंद्रीय कानूनों में संशोधन के लिए लाए गए थे, उनको राज्यपाल ने करीब 1.5 महीने से आगे नहीं भेज रहे हैं, उनको रोक रखा है। इसके खिलाफ भी कांग्रेस ये धरना देने जा रही है और आने वाले दिनों में यह तय माना जा रहा है कि राजभवन पर कांग्रेस के हमले और तेज होंगे। राजभवन और कांग्रेस के रिश्तों में तल्खी आगे आने वाले दिनों में और देखने को मिल सकती है। ये आज के धरने प्रदर्शन और ये जो अभियान है। बिल्कुल गोवर्धन, आप बने रहिए हमारे साथ, और भी कई सवाल हैं, हम जो है जनता तक उसको पहुंचाएंगे। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो किसानों के कृषि कानून के खिलाफ लगातार कांग्रेस हमलावर है और इसको लेकर धरना प्रदर्शन आज चल रहा है। तो इस धरना प्रदर्शन में सीएम अशोक गहलोत भी पहुंचेंगे, सचिन पायलट भी पहुंचेंगे और पहुंचने के जो है सिलसिला जो विधायकों का वहां पर शुरू हो चुका है। तमाम जो है नेता और मंत्री पहुंच रहे हैं और हमारे साथ लगातार बने हुए गोवर्धन, वो धरना स्थल पर मौजूद हैं। गोवर्धन, तस्वीरें दिखाइए, दर्शकों तक पहुंचाइए और बताइए कि कौन कौन लोग अभी तक पहुंच रहे हैं और धरना प्रदर्शन में अभी तक। तो कृषि कानून पर कांग्रेस पूरे आर पार के मूड में है और लगातार
कोई भी कोर कसर बाकी रखना नहीं चाह रही है। लगातार कृषि कानून के खिलाफ केंद्र को घेरने की कोशिश कर रही है। एक बार फिर से किसानों के जो कानून है, कृषि कानून है, उसके खिलाफ एक बार फिर से हल्ला बोला है और 4 घंटे का धरना प्रदर्शन आज करेगी, जिसमें सीएम अशोक गहलोत भी उसमें शामिल होंगे। सचिन पायलट और भी कई जो कृषि मंत्री हैं, विधायक हैं, वो सब इसमें पहुंच रहे हैं। सारा कांग्रेस का विधायक दल, कांग्रेस के समर्थित विधायक सब लोग यहाँ पर धरने पे बैठेंगे और उसके बाद में भी अगर दिल्ली की सरकार पे जून नहीं रेंगती है तो 5 तारीख से लेकर 11 तारीख तक सभी मंत्री विधायक सब अपने अपने क्षेत्रों के अंदर दौरे पे रहेंगे और किसानों को अवगत कराएंगे किस प्रकार की जो इसका आंदोलन का रूप दिया जा रहा है। जिस प्रकार से भी आंदोलन दिया जाएगा, जब तक ये बिल वापस नहीं ले जाएंगे तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। जो इस देश का अन्नदाता है, जिसने सदा इस देश का पेट भरा है, आज उसके सामने मुसीबत आई है तो हम उसके साथ क्यों नहीं खड़े हों? हमें साथ खड़ा होना चाहिए। पूरा देश खड़ा है तो सरकार को किसानों की सुध लेनी चाहिए। लगातार मैं समझता हूं कि 40 दिन के आसपास होने को आ गए, लेकिन केंद्र सरकार कतई भी इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। उनको किसान की पीड़ा को समझना चाहिए। 3 काले कानून इन्होंने लागू किए हैं, इनको वापस लेना चाहिए। और मैं मोदी जी को यह राय भी देता हूं कि इसमें कोई नीचापन नहीं है। पब्लिक नहीं चाहती, हम जनप्रतिनिधि हैं, जनता जो चाहती है वो हमें करना चाहिए। अगर कानून पास कर दिया तो इनको, जब लोग कह रहे हैं वापस लो तो वापस ले लेना चाहिए। आज अन्नदाता, दिल्ली के अंदर बरसात हो रही है, आज इस सर्दी के अंदर पड़े हैं, आज 40 दिन के लगभग हो गए हैं। तो मैं तो यही समझता हूँ कि ये काले कानून वापस लेने चाहिए। जो चल रहा है वो बहुत बढ़िया है। तो शहीद स्मारक पर कांग्रेस का धरना प्रदर्शन, आपको बता दें कि तमाम विधायक मंत्री धरना प्रदर्शन पर पहुंच रहे हैं, जिसमें सीएम अशोक गहलोत, सचिन पायलट और तमाम मंत्री वो यहां पर पहुंचेंगे और कृषि कानून के खिलाफ एक बार फिर से केंद्र के खिलाफ हल्ला बोलेंगे। लगातार कृषि कानून को लेकर कांग्रेस हमलावर है और एक बार फिर से जो है कांग्रेस जो है धरना प्रदर्शन कर रही है। 4 घंटे का ये प्रदर्शन चलेगा, जिसमें सीएम अशोक गहलोत शामिल होंगे। आपको बता दें कि राज्यपाल द्वारा यहां पर कृषि कानून को भेजा गया था कांग्रेस की तरफ से, उसे भी राष्ट्रपति की तरफ से मंजूरी नहीं मिली, देने की कोशिश की है राज्यपाल की तरफ से, उसको भी लेकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। दोनों बार हमारी मजबूरी रही, आज भी हमारी मजबूरी। हम तो चाहते थे केंद्र सरकार जो उन्होंने कृषि विरोधी कानून पास कराए हैं उन कानूनों को वापस ले ले। काफी लंबे समय तक सब्र भी किया कि किसानों को उनका हक मिल जाए, न्याय मिल जाए, लेकिन केंद्र सरकार के और प्रधानमंत्री जी के कानों पर जूं नहीं रेंग रही। स्थिति यह है कि किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। कल भी एक किसान ने आत्महत्या की, लेकिन दुख की बात है कि ऐसी संवेदनशील सरकार है जो कृषि का कॉर्पोरेटाइजेशन तो करने की कोशिश कर रही है, लेकिन किसानों को राहत देने की बात नहीं कर रही है। बड़े पूंजीपतियों के हाथों में किसानों को एक तरीके से ये कहें बेचा जाने की कोशिश की जा रही है। तो सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी को सुन रहे थे आप, और उनका साफ तौर पर कहना है कि जो सरकार है वो कॉरपोरेटर्स को फायदा पहुंचाने के लिए ये कानून लेकर आए हैं, किसानों की सरकार नहीं सुन रही है। और साथ में ये चेतावनी भी दी है कि अगर सरकार जो है इनकी बात नहीं सुनती है तो वो आगे भी इस अभियान को बढ़ाएंगे। और लगातार वहां पर विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। तमाम विधायक मंत्री वहां पर पहुंचेंगे। सीएम अशोक गहलोत भी होंगे, पीसीसी चीफ डोटासरा पहुंचेंगे, साथ में सचिन पायलट भी पहुंचेंगे। कहीं ना कहीं जो है इस धरना प्रदर्शन से एक एकजुटता का संदेश भी देने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट है, क्योंकि इसमें सचिन पायलट भी आ रहे हैं और कांग्रेस समर्थक विधायक भी हैं और जो है कांग्रेस के विधायक भी हैं और कांग्रेस समर्थित विधायकों को भी आमंत्रित किया गया है इसमें। तो कृषि कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन तो चल ही रहा है और साथ में जो राज्यपाल द्वारा राज्य के 3 कृषि बिल्स रोका गया है, उस मुद्दे पर भी कांग्रेस जो है हमलावर है। लगातार आरोप लगा रही है कि केंद्र के दबाव में कृषि बिल
जो 3 कृषि बिल है राज्य के, उन्हें राज्यपाल ने रोक रखा है, राष्ट्रपति तक पहुंचने नहीं दिया, उसे मंजूरी नहीं दिलाई। तो शहीद स्मारक पर यह धरना प्रदर्शन चल रहा है, जहां पर कृषि कानून के खिलाफ धरना प्रदर्शन चल रहा है। तमाम कांग्रेस के विधायक और समर्थित विधायक वहां पर पहुंच रहे हैं। थोड़ी देर में सीएम अशोक गहलोत भी पहुंचेंगे, सचिन पायलट और पीसीसी चीफ डोटासरा भी होंगे और यहां पर एक बार फिर से केंद्र को घेरने की कोशिश होगी। तो 4 घंटे तक यह धरना प्रदर्शन चलेगा, 3 बजे तक ये प्रदर्शन होगा, जिसमें कांग्रेस लगातार कृषि कानून को लेकर हमलावर है, लगातार इसका विरोध कर रही है, तीनों कृषि कानून को वापस लेने की मांग कर रही है। लेकिन दोनों ही तरफ से अपने अपने तर्क हैं, कांग्रेस के अपने तर्क हैं और केंद्र के अपने तर्क हैं। केंद्र इसे फायदेमंद बता रही है तो वहीं पर कांग्रेस इससे नुकसानदेह बता रही है। कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि ये जो कानून है वो कॉरपोरेटर्स को फायदा पहुंचाने के लिए बनाया गया है, जबकि केंद्र की तरफ से यह तर्क दिया जा रहा है कि ये जो कानून है इससे किसानों की जो आमदनी है वो बढ़ेगी और उनके पास एक विकल्प यहां पर बढ़ा है। तो दोनों के अपने अपने तर्क, अपने अपने स्टैंड पर कायम हैं। हालांकि आपको बता दें, किसान लगातार विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं और कृषि कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं और कल इस पर वार्ता होगी, एक दौर की और वार्ता होगी। हालांकि इससे पहले जो 7वें दौर की वार्ता हुई थी उसमें 2 विषयों पर जो है रजामंदी हो गई थी, दोनों तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से और किसानों की तरफ से। लेकिन 2 विषय और हैं, एमएसपी और कृषि कानून को लेकर, जिस पर वार्ता कल होगी। अब देखना यह होगा कि कल जो वार्ता होने वाली है उसमें क्या जो है नतीजे आने वाले हैं। हालांकि कांग्रेस ये कह रहे कि अगर सरकार जो है उनकी मांगे पूरी नहीं करती है, किसानों की मांगे पूरी नहीं करती है, तो वो अपने इस अभियान को और भी आगे बढ़ाएंगे और भी आक्रामक रुख अपनाएंगे। किसानों का भी यही चेतावनी दी है कि अगर केंद्र सरकार उनकी मांगे पूरी नहीं करती है तो वो भी ट्रैक्टर आंदोलन करेंगे, ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। तो लगातार जो है प्रदर्शन का दौर जारी है कि तमाम किसान संगठन सड़कों पर इस सर्द दिनों में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं गोवर्धन चौधरी और उनके पास चलते हैं। गोवर्धन, वहां क्या तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, कौन कौन पहुंच रहा है? लगातार कांग्रेस हमलावर है, केंद्र सरकार को घेरने के लिए उसे एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। क्या लगता है कि 4 घंटे के प्रदर्शन के दौरान अपनी शक्ति प्रदर्शन और एकजुटता भी दिखाने की कोशिश है? बिल्कुल, देखिए, केंद्र सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन है, केंद्रीय कानूनों के खिलाफ, और राज्यपाल द्वारा राजस्थान के जो 3 कृषि बिल्स हैं उनको रोकने को लेकर के ये आज 1 दिवसीय धरना और उसके बाद 7 दिन का अभियान कांग्रेस शुरू करने जा रही है। धरने पर आप देख सकते हैं मंत्री विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी, उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी, मंत्री टीकाराम जूली, यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं गणेश घोगरा, निर्दलीय विधायक 2 निर्दलीय विधायक आप देख सकते हैं वो यहां पर पहुंच चुके हैं। 3 मंत्री और हैं, वो भी यहां पर पहुंच गए हैं। तो 12 बजे से शुरू होने वाले इस धरने में मंत्री और विधायकों बनाए रखिए। उस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, कोरोना के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए एक निर्णायक मोड़ सामने आया। डीसीजीआई ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन को मंजूरी दे दी है। हमारे मेहनती वैज्ञानिकों को बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है, ट्वीट करके लिखा है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए एक निर्णायक मोड़, डीसीजीआई ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन को मंजूरी दे दी है। हमारे मेहनती वैज्ञानिकों को बधाई। तो कोवैक्सीन को मंजूरी मिल गई है और इसको लेकर बधाई दी है। लगातार वैक्सीन को लेकर तमाम चर्चाएं हो रही थी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।